دنیا میں بھی. سیاست سے شروعات کرتے ہیں. ہمارے سامنے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات ہیں جس میں ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کے اور خان صاحب کے خیالات میں اس وقت کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہے. سب سے پہلے انہوں نے بیان دیا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا خان صاحب کو کہ اتنی کڑی تنقید جنرل باجوہ پہ نہ کریں کیونکہ وہ بہرحال ہمارے محسن ہیں. اس کو لے کر کل تجزیہ کاروں نے اس بیانات پہ کئی باتیں کی ہیں اور یقیناً ایک طرح سے پھر صفحے آمنے سامنے آئی ہوئی ہے. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اختلاف صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کی ٹائمنگ پر ہے یا نظریاتی اختلافات سر اٹھا رہے ہیں؟ اگر پنجاب میں عدم اعتماد کی موومنٹ آتی ہے پنجاب اسمبلی میں اس کے کیا نتائج اخذ ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں پرویز الہی صاحب کا یہ بیان اور پھر اس پہ گفتگو بھی کرتے ہیں. پنجاب کی اسمبلی ٹوٹے نہ ٹوٹے، چودھری پرویز الہی نے عمران خان کا دل توڑ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سابق جنرل پر تنقید کرنے پر اپنے ہی سیاسی حلیف کو کڑی وارننگ دے ڈالی. اب انہوں نے جو زیادتی کی عمران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے احسان فراموش نہ بنے. باجوہ صاحب کے احسان ہیں. باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے اور ہر چیز کی اگر باہر سے فنڈ لانے تھے خود جاتے رہے. کن کو ملے؟ سلیمان کو ملے، کراؤن پرنس کو ملے، قطر سے پیسے لے کے آئے. آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیم میں انہوں نے کام کیا. یار یہ کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ کو اتار ہے، اوپر سے آ گئے ہیں سارے لوگ. اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا، اس پر ساری ہماری پارٹی بولے گی. یہ انہوں نے مذاق بنا لیا. پرویز الہی نے عمران خان سے بھی شکوہ کیا کہ منع کرنے کے باوجود انہوں نے ساتھ بٹھا کر باجوہ صاحب پر تنقید کی، جس پر باجوہ صاحب نے انہیں پیغام بھیجا. جی جناب، باجوہ صاحب محسن ہیں، احسانات ہے پی ٹی آئی پہ، حکومت کے لیے انہوں نے بہت محنت کی، یہ کہنا ہے چودھری پرویز الہی کا. اس وقت پی ٹی آئی کے سینئر رہنما علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئے ان کی رائے بھی لیتے ہیں. السلام علیکم علی. جی وعلیکم السلام. علی، یہ بیانات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ پہلے ہی میڈیا میں چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ پی ایم ایل کیو اور پی ٹی آئی ایک پیج پہ نہیں ہے. کیا یہ اسمبلی توڑنے کے معاملے سے اس کا لنکیج ہے؟ باجوہ صاحب کی حمایت میں اتنی کڑی باتیں کہنا کس طرح دیکھ رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی اس کو؟ دیکھیے، کولیشن پارٹنرز ہیں ہمارے، ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے. وہ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بولیں کیا بیانیہ ہے. انہوں نے کیا زیر اوپینین، ان کا اوپینین ہے. ہمارا جو اوپینین تھا وہ خان صاحب نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس پہ کیا میں کمنٹ کروں؟ ان کا ایک اوپینین ہے، سمجھتے ہیں کہ ان کے موشن ہے، بس صاحب تو بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا اوپینین دے دی ہے. علی ہی واز ویری کلیئر ان سیئنگ کہ باجوہ صاحب پی ٹی آئی کے موسن ہیں. پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنانے میں باجوہ صاحب کا بڑی ایک کردار ہے، یہ کہنا ہے پرویز الہی صاحب کا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پرویز الہی صاحب کو اوپینین ہے. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو خان صاحب کلیئرلی دے چکے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پیج پہ ہیں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کرنے کے معاملے پہ اور کہہ رہے ہیں میں سائن کر کے دے چکا ہوں، خان صاحب جب چاہیں کر لیں، لیکن 90% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں اس وقت تحلیل نہ ہوں. آپ ان 90% کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی میں بھی یہ خیال موجود ہے کہ اس وقت پنجاب اسمبلی کو اور کے پی کے اسمبلی کو تحلیل نہیں ہونا چاہیے؟ اوپینینز ہوتے ہیں، فیصلہ لیڈرشپ سے کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ نے سب کے اوپینینز دیے ہیں. لیڈرشپ یعنی کہ ڈسکشن ہوئے، ڈبیٹ ہوئے ہیں، سب کے اوپینینز دیے گئے ہیں اور پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو وہ اب اس کو کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہے لکھ کے. تو پھر ریزالو کرنے والا جو ایشو ہے وہ تو ابھی کوئی اتنی بڑی ڈسکشن رہتی نہیں نا. اب یہ نہیں پتا کہ اگلے 5 دن بعد کیا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، کسی کو بھی فیوچر کا نہیں پتا. علی، یہ جو بات، یہ جو جی
अली, ये जो स्ट्रेटेजिक मूव है पीटीआई का, वेयर दे आर सेइंग कि हम प्रोविंशियल असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्रोविंशियल इलेक्शंस पहले हुए हैं, लेकिन यकीनन अगर आप ये ऐसा करते हैं तो शायद उस तरफ को बात जाएगी या फिर पीडीएम गवर्नर राज की तरफ जाएगी। इसके आगे का लाए अमल इस वक्त तैयार है, और आपके ये कहने के बाद क्या पीडीएम से, मौजूदा हुकूमत से कोई इस वक्त डायलॉग हुआ है, कोई मुज़ाकरात हुए हैं? देखिए, प्रेसिडेंट अलवी साहब कुछ बात कर रहे थे। आई एम नॉट प्रिवी टू द कॉन्वर्सेशन। आज हमारा तो बड़ा क्लियर स्टैंड था कि जी एक बात करनी है, अभी आज कर लें, अभी भी वक्त है। शायद इसलिए खान साहब ने 4-5 दिन दिए हैं बीच में कि इलेक्शन के ऊपर बात कर ले, तो ये सारा चक्कर ना हो। मुल्क के हालात में जा रहा है इकोनॉमिकली, वो तो ये अनसस्टेनेबल होगी। अली, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि कोएलिशन पार्टनर्स पीएमएल-क्यू पीटीआई का साथ छोड़ दें? पॉसिबिलिटी है? अगर वो लिख के दे चुके हैं तो उसके बाद ही करेंगे जो भी वो करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, सलाम। फैसल, किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं हालात को, और क्या आप समझते हैं कि पंजाब असेंबलीज डिसॉल्व होंगी? वजीर आला पंजाब जनाब परवेज इलाही साहब का बयान हमारे सामने है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सिदरा साहिबा, जिस दिन इमरान ने ऐलान किया कि मैं दोनों असम्बलियां तोड़ने जा रहा हूं, एक हफ्ते का बीच में फिर भी टाइम दिया जी, क्योंकि वो उस पर भी यूटर्न ली। क्यों हफ्ते का टाइम दिया? आप तो कहते मैं उस दिन तोड़ूंगा जी, आपने हफ्ते का टाइम बीच में दिया क्यों? देखें, ये इमरान खान साहब जो हैं वो विक्टों के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, जो लोगों पे इल्जाम लगाते थे ना जी। आप अगर तारीख उठाएं, जब डी चौक इनका धरना था और इन्होंने जब उस वक्त अपनी सूबाई हुकूमत को कहा कि आप अपनी सूबाई असम्बली तोड़ दें, तो उस वक्त सूबाई हुकूमत ने, सूबाई वज़ीर आला ने मिन्नतें की, अपोजिशन की कि आप खुदारा हमारे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा लें। ये हमारे लीडर जो है इसको समझ नहीं आती कि क्या करना जा रहा है, और ताकि हमारी असम्बली बच जाए। तो उस वक्त की अपोजिशन ने जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई, और क्योंकि आपको पता है कि खान साहब को फिर चंद दिनों बाद ख्याल आता है कि मैंने जो बात की थी इसमें मैंने यू टर्न लेना है और मुझे पता नहीं था, तो फिर वही हुआ कि यू टर्न लिया। उसके बाद एक और दफा उन्होंने ये काम किया, फिर भी अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। अब इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूं जी, और ये एक हफ्ते के अंदर जो है अपोजिशन जो है अदम एतमाद की तहरीक जमा करा रहे ताकि मेरी असम्बली को कुछ टाइम मिल जाए। मेरा जाती ख्याल है, मेरा जाती मौकफ है, और मैं अपनी पार्टी में भी मौकफ रखूंगा और अपनी इत्तेहादी जमातों के सामने भी मेरी जाती है जी कि हम तो तैयार है इलेक्शन के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्क इलेक्शन के लिए तैयार है। इनको बोले इमरान खान का बड़ा अगर शौक है इलेक्शन लड़ने का, इन दो सूबों में केपी और पंजाब में इलेक्शन करने चाहिए, क्योंकि आइन ये कहता है जब असम्बली टूटती है तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना पड़ता है। इलेक्शन कराना ताकि इमरान खान साहब को पता चल जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, लेकिन एक बात वही वाली बात है जी फरमाइए। उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जिन आपके चोरों और लुटेरों को और दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को जो पनाह सूबाई हुकूमतें, 2 सूबाई हुकूमतें दे रही हैं, फिर वो नहीं होगा, और आधी पीटीआई जो है वो जेल से फिर इलेक्शन लड़ेगी। मुझे ये बताइए फैसल साहब के सबसे जो की इस वक्त इशू है वो मुल्क की मईशत है, और इसके हवाले से सब लोग बात कर रहे हैं कि भाई देखना ये है कि इलेक्शंस हो या ना हो। खान साहब का एक बड़ा स्ट्रांग नैरेटिव चल रहा है कि जी मईशत संभाली नहीं जा रही और वाहिद हल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि नेशनल इलेक्शन से आएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमेशा एक मजबूत हुकूमत की हामी रही है। आपका जो टर्म था वो भी एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, वी सॉ कि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की आपने। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के माशी मसाइल को हल करने के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है और शायद वो सिर्फ फ्रेश इलेक्शन से ही आ सकती है? देखिए, मईशत को ठीक करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को और सियासतदानों को बैठना पड़ेगा। सही। इमरान खान की एक जिद है कि मैंने किसी के साथ नहीं बैठना, मैं अगर वजीर आजम होऊंगा बस मुझे वजीर आजम बना दे, बाकी मुल्क खुदा न खास्ता बाढ़ में चला जाए। आप मुझे बताएं कि मईशत के साथ इसने किया क्या है। मैं आपको सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं, जिस सूबे में इसकी आज 10 साल हुकूमत होने जा रहे हैं जी, उस सूबे की आप मईशत काल देखें कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। उस सूबे की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखें, कल जो है लगातार पुलिस पे, फौज पे, मुख्तलिफ लोगों पे हमले हो रहे हैं, शहादतें हो रही हैं। जो पुरअमन सूबा और पाकिस्तान हमने इसके हवाले किया था उसका इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। उसमें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है ना फैसल, उसमें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। देखें, ये जो इनकी जो पुलिस है जो इनको प्रोटोकॉल देने में मसरूफ है, सारी पुलिस इनकी तरफ। आज मुझे बताएं, कल बन्नू कैंट पे जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हमला हुआ,
वहां पर लोगों को जो है वो महसूर किया गया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को। नहीं फैसल, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए, दहशतगर्दी के मामलात में किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को हम बरूए इल्जाम नहीं ठहरा सकते, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने कहा कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, खासतौर पे केपी और पंजाब में, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन आई वांट टू गो बैक टू योर अर्लियर कमेंट। आपने कहा कि मईशत के लिए पीटीआई हुकूमत की स्ट्रैटेजीज काफी हद तक नाकाम थी। क्या इन हाइंडसाइट आप ये सोचते हैं कि अगर अदम एतमाद की मूवमेंट लाकर ये पीडीएम की हुकूमत ना बनाई जाती तो इन एनी वेज खान साहब की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन पर थी, और हो सकता है जो अगले इलेक्शंस होते 2023 के इलेक्शंस, उसमें खान साहब की परफॉर्मेंस अच्छी ना होती। इस इंटरवेंशन की वजह से, इस अदम एतमाद की मूवमेंट की वजह से खान साहब की पॉपुलैरिटी खूब बढ़ गई है। देखिए, मैं इस बात से आपके साथ एग्री नहीं करता हूं। आप कि तमाम हमारी अपोजिशन जमातें हमेशा हमारी सिंध गवर्नमेंट को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती है। मेजॉरिटी जो चैनल्स के जो एंकर्स हैं, उनका सारा दिन रात उनका यही काम है कि हमारी सिंध हुकूमत को जो है वो टारगेट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमने वहां पर काम किया, सिंध की आवाम ने हमेशा हमें मैंडेट दिया और हम उससे ज्यादा मैंडेट लेकर आए। लिहाजा जो बात ये है कि जी खान साहब अगर 5 साल पूरे कर दे तो बिल्कुल फारिग हो जाता। देखिए, सियासी जमातें कभी फारिग नहीं होती, सियासी जमातें कभी जो है खत्म नहीं होती। मियां साहब भी जो है वो 14 जो है मेंबरान के साथ एक दफा कौमी असम्बली में थे और उसके बाद 2 तहसील के साथ आए। पीटीआई भी आप देखें 2008 में कितनी उनकी सीटें थी, 2013 में कितनी थी और बाद में कितनी। देखिए, सियासी जमातें अगर प्योर सियासी जमातें ऐसे नहीं होती। आप कहते हैं कि जी अगर ये चीज हो जाती तो ये था। अच्छा फैसल साहब, आखिरी सवाल, छोटा सा सवाल, वक्त कम है मेरे पास। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौकफ है? क्या आप नवाज शरीफ साहब को इस आइंदा आने वाले इलेक्शन जब भी ये हों, इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ, इलेक्शन लड़ता हुआ देख रहे हैं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत करेगी? देखें, मियां साहब की पार्टी ने और मियां साहब ने खुद फैसला करना है कि कब आना है और इलेक्शन लड़ना। मेरे ख्याल में अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी की अपनी जो है उसको संभालेंगे और पार्टी की क्यादत करेंगे। ये पीएमएलएन का अपना अंदरूनी मामला है, पीएमएलएन ने डिसाइड करना है, पीपल्स पार्टी है, उसकी इत्तेहादी जमात नहीं करना। हर लीडर को मैं समझता हूं कि मुल्क में होना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए और जो है सर, लेकिन उन पे तो बहुत सारे केसेस है ना, उनको तो अभी कोर्ट को फेस करना है, उस पे आपका क्या मौकफ है? देखें, केसेस का तो परवेज इलाही साहब ने आपको बता दिया कि मेरे पीछे भी जो है इमरान जो है साहब का जो है डीजीएसआई लगा हुआ था, मेरे और मेरे बेटे का जीना हराम किया हुआ था इमरान खान के कहने पे। तो जो आपको पता चल गया कि डीजीएसआई, माजी के डीजीएसआई का क्या रोल रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो अब वो तो सारे केस डाउटफुल हो गए ना कि किस तरीके से उनको केस बना देते हो। हम नहीं कह रहे, परवेज इलाही कह रहे हैं। परवेज इलाही कौन है? इमरान खान का जो है वो वसीम अकरम प्लस है इस वक्त, और पता नहीं कब उसकी ट्रोलिंग शुरू हो जाए। किसी भी वक्त आप खबरों में सुनेंगे ट्रोलिंग उसकी शुरू हो गई है। शुरुआत तो आप लोगों ने की थी जब पहले वो इलेक्शन लड़े थे बेचारे सीएम के तौर पे, और उन्होंने काफी चोटें भी सही थी, उस वक्त भी उनकी ट्रोलिंग हो रही थी। मगर बहरहाल वक्त मेरे पास आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और यकीनन पाकिस्तान की सियासत कई उतार चढ़ाव से गुजर रही है। अगले 5 दिन 6 दिन बल्कि दिसंबर का पूरा महीना शायद हमारे लिए